ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗੁਰੂ अपनी चरण जगह दे बर्दाश्त करना भी मुश्किल है, कोई इतना आसान नहीं है कि लोग आ जाएंगे, लेकिन हल कोई नहीं है। अगर समाज के इकट्ठे होने ना पता जिन्हों का पूरा समाज पूरा कौम पड़े ना ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ दो तीन दिन बाद होती है इधर लगा ना गोला भी आगे जो थोड़ा थले मकान दिखता है छोटा सा उस तो पहले सर वो साढ़े वही होएगा राती तो हो नाइट विजन सिस्टम सारा भाई कौन सा दिल्ली के कौन बोलते हैं भाई सर्विस रात को आती है कौन बोलते हैं तो तू जाएगी डबल चार्ज
ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਖਬਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਭਲਾ ਪਿਛਲੀ ਦੌੜ ਸਫਾਈ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਆने से पेपर ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ चलो इंजर्ड ऐसे कम से कम हो ना वो चलेगा। ਪੁੰਛ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ हाँ ठीक है वो नहीं चली ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਨੀ ਕਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪਰ सर देखो बंदा अद्धा खत्म रस्से होता ਬੰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40% ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ 40 ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10 ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ सलाई की डिप्टी कमीशन नहीं है सर ना सर बिल्कुल देखो ये तो मेरा 0% है। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗੀ छोटी दवाई नहीं चलेगा ਦਿਮਾਗੀ आधे बाहर होने का उसका सीटी स्कैन है टेक्नीशियन नहीं कदे कुछ प्रॉब्लम नहीं ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ डालो जी स्ट्राइक कोई नहीं ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ सर दवाइयां सारियां सर वो देंगे पौने 4 बजे होया पुरानी दवाइयां देंगे पे लोग जम्मू पहुंचा सकते थे टाइम ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਦਸਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਭਈ ਜੰਮੂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਦਮ ਤੇ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ सर कोई चॉपर दा करो सर आगे नेक्स्ट ਚਾਪਰ ਦਾ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀ ਪੁੰਛ ਕੇ ਲਾਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਰਜੋਰੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ BRGF ਸਕੀਮ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕੋਈ सर APSC है फर्स्ट एड नहीं पर ये तो दे पिछली सके सिटी है सर बॉर्डर में कुछ नहीं है सर ऊपर देखो लोग जानते 170 ही आड़े आ रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही हैं बैक टू विलेज सर एक ना तो क्या कहता दसो पहले वो दसो ड्रामा ही पर पहले क्या कहता वो दसो ना लोगों ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਪੰਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਪੰਚਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ harassment ਹੈ ਸਰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ harassment ਕਰਦੇ ਸਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਹੋਏ ਤੇ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਰੀ ਔਰ ਕੈਜੂਅਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਸਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਸ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2000 ਦਿਓ 3000 ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਸਰ ਹੈ सर करप्शन बहुत चल रही है मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ मैं आई एम एडवोकेट सर ठीक है प्रैक्टिस पुंछ में कर रहा हूँ प्रदर्शनों की सरकार है और बाकी प्रदर्शनों की सरकार है कुछ नहीं लेकिन चलो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी पीस हो और पीस में किसी का घर में ऐसा माहौल ना बस्ती का घर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ ਐਲਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗਰਾਵਾਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਸਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ यहीं सब क्या होना प्रोग्राम है जी वहाँ पे रहंदे भी थे ਇੱਥੇ ਸਭ ਫਾਦਰ ਲਾ ਇਹ ਬਈ ਸਭ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫਾਦਰ ਨੇ अगर डिफेंसिव पोजीशन की फायर करन तो पब्लिक का नुकसान नहीं होता लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक गन जी मोबाइल लेकर जाते हैं ना अज गन लाइट है कि तू फायर करे नट के
कल गल आई दूसरे गिरां दे बोर्ड भी खुले वो फिर उन्हें टारगेट ये जगह करनी जिथों करने फायर किया उसकी नुकसान जी जी वो तो मुड़ सारी रेंज उठा वापस नहीं देखो शोएब मुड़ा ही सारा 17 साल की टीम थी 33 साल इससे दो बच्चे हैं देखो पैसे दे लिहाज नाल ते जान दी कीमत नहीं है सारा हुंदा क्या दित्ते पैसे कोई देते 1,10,000 के कल थले भी दे गए 10,000 नगद 1 लाख दा चेक दित्ता भाई है 5-10 मिनट बॉर्डर एरिया सर इसमें सबसे बड़ी बात देखो अगर कोई आदमी हमारा जख्मी होगा या कुछ भी होगा लेकिन कम से कम जो मौजूदा हुकूमत है इन दलों को ये तो चाहिए कम से कम चापर तो अवेलेबल रखना चाहिए रोजमर्रा का जंग है ना ये तो दुनिया की तबाही है ना जंग भी तो यार आ रहा है लेकिन ये जंग है ना ये बड़ा जंग ये तो लोगों को खत्म कर दूजा साडे लोग इस साल मारे गए बातें वजह से साल ने फसल बोले नहीं वजह से फसल नहीं मारे फसलों का नुकसान है ओदा कोई मुआवजा कोई कख नहीं कोई पटवारी कोई किसान कोई किसी नहीं मतलब अच्छा मक्का कट के लोग रखे बोmbardment होई जा कट मक्का जमीन भी कट दी सारी मसीबत सानू के कहते हैं कि चौधरी अकरम साहब की कंडीशन लोग उस बगैर किसी गल दे हादसा बन गया पूरा सारे लोग पूरा अफसोस ते इस दुख की घड़ी थोड़े लोगों नाल जम्मू स्पेशल इसे करके आए हैं भाई ये बेकीमती जाना गई छोटा बच्चा रह गया सारे असं सब लोग थोड़े लोगों नाल और दुआई करने कि उपर वाले अपनी चरना जगह दे नाल सी ना के लगे जी जी थोड़ी अच्छी भली गई बैंक जो पैसे कढ़ाए थे सब हिसाब किताब करना है लेखा जोखा बस और इन्हों का रूट है सी इधर इधर इथों थले ऊपर आंदी सी नाल ही गड्डी ते उन्होंने मौत ही ले गए पैसे देने से बस दूसरा आदमी ने पैसा देना आया मेरे को दिखा 50,000 रुपया दूसरी कुड़ी दी गई आया उसने देना था बशीर उस्ताद का पैसा आया वो ये लड़की बोल रही मैं जाऊंगी घर में कम कर दिया ये दो बच्चे हैं बस दो ही बच्चे हैं दवाई चलो दो बच्चे रह गए बच्चे में से मां को लेके चला गया चलो उस अल्लाह ने फिर भी कर्म किया बच्चा महफूज रहा हैं तो दुख तो उसका भी है लेकिन उन सब्र के बगैर चारों नहीं है सब्र हो नहीं सकता चलो देखिए करनो पे वो जबरदस्ती हूं तम थारा दा अब तो अल्लाह ऐसे हालात बन गए कि सब लोग दुखी हैं सब पूरे पूंछ के सब साथ लोग दुखी है सर देखो ये आपकी बीवी गई वो भी किसी के बच्ची थी उसका बच्चा गया तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा परेशानी तो है ना ठोस कदम की ज़रूरत है कि कोई ठोस कदम उठाए कि या तो उस पर कार्रवाई हो या तो कोई इलाका लेना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम भी उसके साथ हैं ले ले ये वक्ती पर डंगो डंग वाला सिलसिला नहीं चलेगा ना रोज लगातार जब से पूछे मेरे ख्याल में 4 साल में सबसे ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ साथ वायलेशन हुई आपने यहाँ के पब्लिक की बातें सुनी लेकिन यहाँ के बोले किसको एडमिनिस्ट्रेशन की लात है वो भी उनके पंजे में है बात ही नहीं कोई सुनता है यहाँ सर ये बॉर्डर रेंज आता है बॉर्डर का अगर वो इतना बड़ा फैसला करता है हमारी पुलिस का फैसला करते हैं हमें या उस साइड भेज दें कुछ भी करे मर्दों की तरह करे चोरों की तरह चोरों की तरह मत करें वो घरों के अंदर बढ़ जाओ तो एजेंसी रिफॉर्म कर दे अपने आप को बचाओ शो मीट करने के लिए और पब्लिक में एक आवाज़ फैलाने के लिए क्या कुल वह जो ड्रामा है दिया क्या दिया एक चीज और हो सकती है रसूल जैसे ऊपर इनका उसी अलार्म का सिस्टम नीचे वाले सिटी में और एरिया में अलग अलग जगह जहाँ से लोगों को इन्फॉर्म हो जाए कोई अलार्म से वो अंदर चले जाए ये भी हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन का कोई जरिया बना यार चौकीदार हम अगर ये अननेसेसरी फायरिंग ना करें अगर हम रेम कर ऐसा नहीं होता है मसला ये चोरों की तरह किस वक्त देता है किससे देता है हमारा उससे तलक नहीं
हमारा इतना तरह है कि हमारी प्राप्ति और जाने महफूज कर दो किसी से क्यों है कुछ नहीं है ही नहीं बैंकर कहाँ है है ही नहीं सर, बैंकर है ही नहीं, बैंकर है ही बहुत कम है सर। मैं कहता हूँ निकलना ही निकलना है, गाय बकरियां चराने के लिए औरतों ने निकलना ही निकलना है, तो बैंकर को क्या करना है? ये थोड़ी फिक्स है 9 बजे गोला आएगा, 11 बजे आएगा। स्कूल जो भी इनकी चाल, लेकिन यहाँ जो पुलिस जोरी की आवाम है ये किसको रोएगी? ये कोई देगा फंस गया, ये लाते भाई सिर के ऊपर गोला लगने का लगा हुआ था। पीएचई वाले पैसे मांगते हैं कनेक्शन करो। सर जितना ये सामने इसमें खाली एक यहाँ पे चश्मा है, बाकी कोई पानी का साथ है, वो भी इसमें बारिशें थी तो चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पीने के लिए है, बाकी लिफ्ट का कोई लिफ्ट नहीं, कुछ अभी लिफ्ट वो जो लिफ्ट है एक दिन मोटर खराब होती है, बिना ही पड़ेगी। अल्लाह ना मान नहीं आया हम क्या कहते हैं वाफर इंतजाम है इलाज के लिए, वाफर इंतजाम। अगर यहाँ पट्टी का इंतजाम होता वो लड़का नहीं मरता, उसका खून रोका जाता। खून ज़्यादा मिल जाए। फर्स्ट एड तो यहाँ ही मिल जानी चाहिए थी, कम से कम ब्लीडिंग तो रुक जानी चाहिए। है ही नहीं उनके पास कुछ, रुक जाती बच्चा बच जाता। अगर आपको एक कार्टन की पट्टी मिल जाए तो मैं दाढ़ी करूँ, कुछ नहीं हालात ऐसी। क्या करेगा जी? बेसिक जो है हमें ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करती है, उधर से उधर गोले मार दिए, पानी बना दी, उधर से इधर बात, लोगों को अटेंशन। बेसिकली ये गवर्नमेंट फेल है। तो इसमें हम सब लोग जब तक मिल के, क्योंकि आप लोग सामने आए, आगे आए, तो हम आपके पीछे हैं। एक एजिटेशन चले और जम्मू कश्मीर के लोगों को या अल्लाह तो मिल जुमला हाज़री ने मजलिस में जो कलाम पाक पढ़ी है, अल्लाह तेरे दरबार आलिया के अंदर फरमा। या अल्लाह खुसूसन अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन गुज़श्ता मरहुमा के रूह में सवाब अज़ीम अता फरमा, अता फरमा। या अल्लाह इसके बच्चों को सब्र अता फरमा। या अल्लाह तो अपने प्यारे नबी के सदके हम सब के ऊपर रहम फरमा। कश्मीर के ऊपर अमन व अमान का गवारा कर दे, अमन व अमान। या अल्लाह हम सब पे रहम करम अता फरमा। या अल्लाह तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं इन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हिफाजत करने वाला है, हम सब की हिफाजत कर, अपनी हिफाजत में थोड़ा पता लेने आए। ये पहले आदमी के भला साहब आए और उतर तक आए कि जिससे बता मर जो लोग मर गए वहाँ पहुँचे और जख्मियों के पास पहुँचे। तो हमारी शिकायत यही है कि आनन फानन फायरिंग से हम बच नहीं सकते। सिविलियों के पास कोई सोर्स नहीं है, कोई पनाह नहीं है जिससे बच सके। या तो इनको इन्फॉर्मेशन हो कि फ़लान वक्त फायरिंग हो रही है तो ये छप जाए मकानों में। ना हम खेती कमा सकते हैं, ना कहीं इधर उधर निकल सकते हैं। अब बच्चा बीमार था, बच्ची पुंछ लेकर गई, जब वह वापस आती है उसे गोले का शिकार बनना। तो इन हालातों में हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं अल्लाह साहब के कि इन्होंने हमारी दिलजोई की है, हमारे दर्दों पे ज़ख्म की पट्टी की है। तो इससे ज़्यादा कोई नुमाइंदा हमारे पास ये नहीं लेने के लिए आया कि अफसोस तुम दुखी हो गए। देना तो दूर रहा, अफसोस दुखी हो गई ऐसी बात नहीं कही। ये कहते हैं कि मेडिसिन का हमने अंबार लगाया, हर जगह कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी डिस्पेंसरी में मेडिसिन नहीं थी जिसके कारण बच्चा ब्लीडिंग से मर गया। ये हमारा शिकायत है। जैसे नुमाइंदे हूँ तो इस बात को ऊंचा बरकत तक पहुँचाएँ तो हो सकता है हमारा कोई इलाज हो जाए, वरना ऐसा इसी तरह सिर के मरेगी तरसता रहेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी का वर्कर, मीडिया के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं रामन भल्ला जी का और इस पूरी अवाम की तरफ से और कस्बा की जितनी भी अवाम है, यहाँ के सरपंच, पंच और चेयरमैन हजरात और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब, इनकी वसालत से भी मैं रामन भल्ला साहब के हम बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे यहाँ आकर हौसला अफजाई की।
लंबी चौड़ी तो बात करने का मतलब नहीं, मेरे बहुत से साथियों ने कुछ बोला है। मैं एक ही अर्ज़ करना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत को कि मोदी साहब, आपने रात को भी खबर में बताया कि 465 आदमी जेलों में बंद हैं। कुछ तो जेलों में बंद हैं, कुछ कश्मीर में आपने बचेकशी की है, लोगों को दरबदर किया है, लेकिन इन गरीब आवाम को, पुंछ और जोरी को ऐसे बॉर्डर में ये जो गोलाबारी हो रही है, इनसे निजात दें। और मुझे ये यकीन है कि आप निजात देने वाले नहीं, आप आवाम को ख़त्म करने वाले। बाकी रहा आपकी डेवलपमेंट, जो वादे आपने खोखले वादे किए थे वो हमने सब कुछ देख लिया। आपके अखबारों में, आपकी टीवी पर जो बयान आते हैं ये बिल्कुल खोखले। और मैं ये कहता हूँ कि खुदा की कसम करके कहता हूँ कि ये जो हुकूमत है बीजेपी की, ये खाली एक प्रोपागेंडा करके एक लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने एक सीट में आकर एक हुकूमत सामी है, लेकिन इस एल ये नहीं है। तो मैं ये कहूँ कि अगर यही हालात पुंछ रजौरी की रही, बॉर्डर के लोगों की रही, तो हम यहाँ से हमें हिजरत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर तुझ में दम है, अगर 370 का दफ़ा तूने तोड़ा है, 35A को तूने ख़त्म किया है, अगर और तुमने जनाली मस्जिद, बाबरी मस्जिद का फैसला किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं तेरे सामने कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तू बात नहीं कर सकता है। हम गरीब आवाम किसको रोएं? तेरी जान को रोएंगे? हम कहाँ रोएंगे? लेकिन हमारा ये आपसे यही बात हम कहेंगे बार बार आवाम की तरफ से। मैं कहूँगा कि ये जो भी हमारे साथ खेल खेली रही है, मौजूदा हुकूमत खेल रही है, और यहाँ की एजुकेशन का जो मसला है उसके हालात देख लो। रावण बल्ला जी, आपके जहन में हमने ये बात डाली है, आपने सरप्राइज विजिट की, आपने यहाँ इस इलाके को देखा, अपनी आंखों से इसका बागौर मुलाजा किया कि ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी। रहा हमारे यहाँ के फसलों का मसला, कश्मीर में जो हालात मेवा जात की हुई है, वही हमारी यहाँ मक्की की, धान की और कणक की हुई है। आप हमारी क्या रायत करेंगे? आप कुछ नहीं हमारी रायत करते। मैं लास्ट में यही बात कहूँगा इस कौमों से, खुदा के लिए आप ऐसा करो कि जंग के जरिए से हमें मार दो, एक ही दिन खत्म कर दो। रोज़ के ये मातमदारियाँ, रोज़ के जनाजे हम आपके पढ़े कि हम अपने बाल बच्चों के पढ़े? हम तो ये है कि हम आपका जनाजा पढ़ रहे हैं। मैं इसी पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले एक फ़ौजी होने के नाते देश का मैं सबसे पहले जनाब रामन बल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो कि कांग्रेस की एक हाई कमांड के सबसे सुपर लीडर हैं इसके जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं उनका यहाँ जो लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं इन शार्ट वक्ती हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि बॉर्डर के लोगों ने 47 की जंग भी देखी, 65 की जंग भी देखी, 71 की भी देखी, और इंसर्जेंसी में प्रैक्सी वार जो चल रहा है इंसर्जेंसी का 15-20-30 साल से, वो भी देखें। इतना जो अवाम के साथ, जिस अवाम ने इस बॉर्डर के ऊपर 3-4 जंगों में अपने शहीदों को आज तक याद कर रहे हैं, आज जो ये प्रैक्सी वार जो फायरिंग जो है, फायर वायलेशन पाकिस्तान का हो रहा है, अगर वक्ती हुकूमत उसका जवाब नहीं दे रही है तो इनको भी फायर बंद करना चाहिए, उनका भी नहीं कराना चाहिए। नहीं तो वो 56 इंच की चौड़ी छाती को दिखा रहे हैं। तो हम तिरंगा झंडे को लेकर अवाम आगे होगी, पीछे हमारे फौज हो, तो पाकिस्तान को सबक सिखा दो अगर तुम्हारे में दम है। नहीं तो लोगों का बेगुनाह लोगों का जो खून बहाना है और ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। और ख़ास करके पुंछ और रजौरी और बॉर्डर बेल्ट के लोग जो इससे तंग हैं, और डिफेंस गवर्नमेंट ये जो आप दावा कर रहे हैं, मैं तो फौजी होने के नाते बोलता हूँ जो मोर्चे बने हैं, जो बंकर बने हैं, हम के नहीं है। जो पाकिस्तान से बम वहाँ से आ रहे हैं, अगर उन बमों का तुलना तो वो 10 फुट का खड्डा बनाते हैं, वहाँ 1 फुट के रखता है, उसमें ज़्यादा ही नुकसान है। गवर्नमेंट को कोई उठकर उपाय करना चाहिए, या तो मुताबिक जो बल्ला साहब ने यहाँ फरमाया है कि इन लोगों को कहीं को प्लेस देकर वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए, या मेन चीज़ यह या फायर को बंद करना चाहिए। नहीं तो तिरंगा झंडा आवाम पकड़ेगी, फौज को हमारे पीछे रखा जाए, पाकिस्तान की तरफ एडवांस किया जाए। अगर दम है तो हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। मैं इसी पर शुक्रिया अदा करता हूँ और हौसला अफजाई करने का। यहाँ पे बड़ा दुख का माहौल है, क्योंकि हमारी पंचायत में 2 लोग शहीद हो गए हैं, एक लेडीज़ और एक बच्चा है जो 16-17 साल का है। इस मौके पे जो रावण बल्ला साहब हमारे पास यहाँ पे आए हैं, उनके दिल के अंदर हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए दर्द था, इसीलिए वो यहाँ पहुँचे हैं। अगर किसी और के अंदर दर्द होता वो भी यहाँ पहुँचता, लेकिन ये दर्द की बात है, ये प्यार की बात है। जम्मू से उसी वक्त उन्होंने राब्ता रखा, जो यहाँ से हमारे ज़ख्मी लोग हैं उनकी वहाँ पे हेल्प की बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ जो एक बच्चा हमारा शहीद हुआ उसके घर में गए हैं। यहाँ पे ऊपर कोजरा में जो कनकोट पंचायत मेरी पंचायत पड़ती है, इसमें यहाँ भी आए हैं, वो भी मेरी पंचायत में है। बशीर साहब का जो बेटा शहीद हुआ है, तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं
और इस दुख के मौके पे हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी ली है तो इन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। इस वक्त लोग जिस परेशानी के आलम में मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो किसी जंग नहीं है, जंग के बगैर शहीद हो रहे हैं। अगर जंग होता तो हम शहीद हो जाते, तो हम कहते अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, लेकिन घरों के अंदर बैठे हुए, घरों के अंदर सोए हुए हम शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसके लिए उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो वादे किए हैं कि हम बैंकर दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि बैंकर 1% या 2% बैंकर देने से लोगों की सेफ्टी नहीं हो सकती। या तो सब लोगों को बैंकर दिए जाएं। ये 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे ये बम गिर रहे हैं, इसकी निशानदेही की जाए कहाँ पे बहुत ज़्यादा किस एरिया में गिर रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोगों को बैंकर दिए। जहाँ अकेला घर है वहाँ पे इंडिविजुअल दिया जाए, और जहाँ पे इकट्ठे 2-4 घर हैं वहाँ पे कम्युनिटी बैंकर दिया जाए। और उसके अलावा ये भी किया जाए कि बातचीत की जाए पाकिस्तान से या उसकी हुकूमत से, या बड़े जो लोग हैं हुकूमत में बैठे वो करें कि इन गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को क्यों मारा जाता है। तो हम तो इस चीज़ के लिए बड़े दुखी हो गए हैं। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और हमारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब हमारे घरों में बिला वजह बच्चे मर रहे हैं तो हमें तो इससे सदमा हो रहा है। हमारे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो हम इस दुख की घड़ी में यही अपील करते हैं इस गवर्नमेंट से कि कुछ हमारे लिए करें। और इन लोगों को जो आप रिलीफ दे रहे हैं वो रिलीफ वो बहुत कम है, क्योंकि 10,000 या 1 लाख रुपया इनके लिए कोई रिलीफ का ये माकूल बंदोबस्त नहीं है। अगर इनके लिए करते हैं तो कुछ रिलीफ में भी बढ़ाया जाए मसला, और इनकी पूरी हेल्प की जाए, और इनकी गरीबी की हालत भी देखी जाए, किस हाल में ये अपना टाइम बसर कर रहे हैं। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। सबसे पहले तो मैं जनाब रमन पल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं पुंछ, जो इस दूर दराज इलाके में इन्होंने विज़िट किया। और दूसरा ये कि जो बीजेपी गवर्नमेंट के झूठे दावे थे वो यहाँ साबित हो रहे हैं, लोग उनको फील्ड में देख रहे हैं। जो भी उन्होंने मतलब बंकर के जैसे दूर दराज इलाकों में बॉर्डर एरिया के लिए बंकर जो स्कीमें लगाई वो सब फेल हो चुकी हैं। लिहाजा हम आज मीडिया की वसादत से यही कहना चाहते हैं जनाब रमन पल्ला साहब को कि वो इस दुख की घड़ी में जो पुंछ के लोग जहाँ पे ये डेथ हो गई हैं उनका जो उन्होंने हौसला अफजाई की है, तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। वो सुबह जम्मू से चल के इस वक्त तक वो मतलब जो 2-3 डेथ हुई हैं उनमें वो इस वक्त तक उनका जो है हौसला अफजाई किया उन घरों में। और आदमी तो जो मौतें हो गई हैं उनके लिए तो कुछ दे तो नहीं सकता, यही होती है हौसला अफजाई। जो इस वक्त तक कोई भी सियासी लीडर, चाहे बीजेपी चाहे दूसरी पार्टियों का है, वो इस वक्त तक इन लोगों की हौसला अफजाई करने यहाँ नहीं पहुँचे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रमन पल्ला साहब का, और ये उनसे उम्मीद है कि ये जाकर जम्मू और सेंटर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनसे ये अपील करेंगे कि इन जो दूर दराज इलाके हैं पुंछ बॉर्डर के, इनके बारे में कोई ऐसी स्कीम निकालें कि जिनसे इन लोगों का ये रोज़ की जो मौतें हो रही हैं उनसे वो बच सकें। इस दुख के मौका में जो पल्ला साहब हमारे पास आए हैं उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि कम से कम स्टेट लेवल के किसी लीडर ने आके हमारी जो है थोड़ी आस बंधाई है और हमारे दुख में शरीक हुए हैं। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जहाँ तक तल्लुक़ है रोज़ की गोलाबारी का, तो हालात ये हैं कि हम रोज़ मरने के लिए तैयार रहते हैं। हम ये इंतज़ार में रहते हैं कि आज एक रशीद का बेटा मरा है, कल फरीद का बेटा, परसों तीसरे का ABC, रोज़ एक न एक आदमी मर रहा है और हम इंतज़ार करते रहे हैं डेड बॉडी उठाने के लिए और दफनाने के हम इंतज़ार करते हैं। यही यहाँ का रोज़ का माहौल बन चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल कोई भी गवर्नमेंट जो है, हम लोगों की बॉर्डर के रहने वाले लोग जो हैं, जो कठुआ से लेकर उड़ी तक बॉर्डर बेल्ट पर जो लोग रहते हैं, इनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसके बाद मैं अपने प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से और वक्त के बादशाह से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करवाया गया था कि हर रोज़ हमारा एक बेटा शहीद होगा। हमने तो सोचा था कि 1947 के बाद हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहेंगे और शहीद नहीं होंगे। शहादतें तो हमने पहले बहुत दे चुकी थी, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ और जो है वो शहादत देती रहेंगी हिंदुस्तान के लिए। और जो हमारा बेटा यहाँ शहीद हो रहा है बिना हथियार के, या तो हथियार दें
या तो इस इलाके के लोगों को फौज में भर्ती कर दें, पूरे बॉर्डर बेल्ट को आप हथियार दे दें, तोहफे दे दें, तनख्वाह दे दें, सारी फैसिलिटी दे दें, और ये जो हिंदुस्तान से जो यहाँ फोर्सेज लगाई गई हैं इस तरीके से करें कि इन लोगों को हथियार दे दें। ये लोग लड़ेंगे, या तो ये अपनी हिफाजत करेंगे, या इनको बचने की छुपने की ट्रेनिंग होगी, या इनको यहाँ से निकाल के किसी सेफ प्लेस पर भेज दें। हॉस्पिटल का ये हाल है कि यहाँ पर पट्टी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल है कि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। 10,000 रुपया देते हैं यहाँ से जम्मू जाने वाले को, 10,000 रुपया तो पेट्रोल खर्चा हो जाता है। सिगरेट का पैकेट कितना महंगा है, एक टिक्का नहीं उसका आता है, 10,000 रुपया दे के भेज देते हैं। कितना मजाक बना रखा है हमारे लोगों का। इससे पहले की लीडरशिप ने मजाक किया, आज की एडमिनिस्ट्रेशन में मजाक कर रही है, हमारे एलजी जो मुर्मू साहब हैं वो भी मजाक कर रहे हैं। और हमें उम्मीद थी कि जब स्टेट को तोड़ के दफ़ा 370 को ख़त्म करके यूटी लगाया गया, हमने सोचा था, गरीब आवाम सोच रही थी शायद कुछ तब्दीली आने वाली है। आप कहते हैं एक सूबा और बना रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी, कोई मरहम नहीं लगा रहे हैं। और इसके लिए हम अनकरीब बड़ी एजिटेशन करने वाले हैं, और 25 सरपंच जो है इंशाल्लाह हम भल्ला साहब की क़यादत में, अपनी कांग्रेस पार्टी की क़यादत में हम दिल्ली तक इसकी एजिटेशन करेंगे। और हम तो बैठने वाले नहीं, खासकर बासियत ब्लॉक चेयरमैन नंगाली मैं कह रहा हूँ कि मेरे ब्लॉक का जो हाल है, यहाँ रोज़ एक आदमी मरता है, हर दूसरे दिन एक आदमी मरता है, किसी को टस से मस नहीं है। इसको बंद किया जाए, फायरबंदी करवाई जाए। वो किसने करवानी है, हम तो करवा नहीं सकते। मैं ब्लॉक चेयरमैन जाके आज़ाद कश्मीर वाले चेयरमैन से तो बात नहीं कर सकता, ये तो प्रधानमंत्री को करनी है। हमारी जान किसने बचानी है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम हिंदुस्तान के बेटे नहीं हैं? हम हिंदुस्तान वाले नहीं हैं? हम हिंदुस्तान का खून नहीं है? ये हमारा मुल्क नहीं है? हमें किस तरीके से आप भेड़ बकरी की तरह देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था कुत्ते का बच्चा मरता है तो मुझे दुख होता है, और हम भी सोच रहे थे कि शायद इनको दुख होता होगा, लेकिन कितना आपका दिल प्रधानमंत्री जी कितना सख्त है। हम लोग मर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करते हैं और मीडिया से ये गुजारिश करते हैं कि अगर ये हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे, सेंटर तक पहुँचे, गवर्नर साहब तक पहुँचे, आपके चैनल गुलिस्तान के जरिए अगर पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी और चैनल के जरिए भी पहुँचे। भल्ला साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जम्मू में जाके, दिल्ली में जाके मीडिया से के थ्रू हमारी बात जो ऊपर तक पहुँचाएँ और हमें बचाएँ, खुदा के लिए हमें बचाएँ। हम रोज़ रोज़ मरना नहीं चाहते। हमारे नौजवान बिना मतलब के मार रहे हैं, ये देश के लिए शहीद हो गए। इनकी क्या दुश्मनी थी पाकिस्तान के साथ? हमारे नौजवानों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम अगर गोला खाते हैं हिंदुस्तानी होने की वजह से खा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए गोला हमारे पेट में लगता है, हमारे सीने में गोली लगती है। और आप हमें 10,000 रुपया देते हैं, आप हमें 1 लाख रुपया देते हैं। आपने एक्स ग्रेशिया रिलीफ देनी होती है जब किसी को 30 लाख 20 लाख। कल भी हमने देखा एक सरपंच जो शहीद हो गया अनंतनाग में, वहाँ जो सरकारी मुलाजिम शहीद हुआ उसको 30 लाख रुपए आप दे रहे हो, और जो सरपंच शहीद हुआ उसके लिए सिर्फ 2 बातें कही गई हैं अखबार में कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कंपनसेशन दें। क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर यही हालात रहा तो 25 सरपंच भी सोचने में मजबूर होंगे कि हम कब तक आपके साथ चलेंगे। ये तो इस बात को बंद करें, और हम इसकी पुरजोर तौर पर मजम्मत करते हैं। 25 को, सरपंच को, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है कि हमें 25 सरपंच की बातें सुने, ब्लॉक चेयरमैन की बातें सुने, आवाम की बातें सुने। पता नहीं ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, नीचे वाले क्या कर रहे हैं, बीच में कौन लोग हैं। तो हमारी ये गुजारिश है, भल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इसमें मदद करें। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सबका वज़ीर रमन भल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में हमारे दुख में शरीक होने के लिए ये कल से ही बाजिद थे। कल हमने इनसे कहा कि आज सारे लोग जो हैं उसमें लगे हुए हैं, आप लेट पहुंचोगे। तो ये परसों जैसे ही ये हादसा हुआ उसी वक्त फ़ोन पे लगातार रब्ता था। फिर हॉस्पिटल में भी ये गए, वहाँ मरीज़ों के पास जो यहाँ से इंजर्ड गए थे उनकी हौसला अफजाई भी की। तो इसके लिए पुंछ का हर आदमी भल्ला साहब का शुक्रिया है। बाकी जो लोग आज ज़िम्मेदार हैं, जो जमात इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, हम उनसे पूछते हैं कि आपने वादा किया था यहाँ चॉपर सर्विस दी जाएगी। सर्विस तो दूर की बात, आप देखो जब कांग्रेस का दौर था उस वक्त कहीं भी ज़रा बार भी कोई एक्सीडेंट होता था, कोई ट्रेजेडी होती थी, फायरिंग से कोई इंजर्ड होता था तो 1-1.5 घंटे के अंदर वो चॉपर के ज़रिए जम्मू पहुँच जाता था। आज ये जो जिस बच्चे की डेथ हुई है वो इनकी पब्लिक हेल्थ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पे था। तो ये सिर्फ उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हुई है, इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो हम एक चीज़ कहेंगे कि किस्तों में हमें जो शहीद किया जा रहा है इससे बेहतर है इन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगा को ऊंचा रखा है, हमेशा तावन किया है। अगर आप वहाँ एक तरफ से कहते हैं वाजपेयी का दौर याद करते हैं, दूसरे का दौर, और उस वक्त अगर इन्होंने सीज़ फायर किया था, आज भी सीज़ फायर क्यों नहीं करते अगर बीजेपी की सरकार है। अगर कांग्रेस के दौर में यहाँ ज़रा बार भी नुकसान होता था तो पूरी हाई कमांड यहाँ पहुँचती थी, ज़िम्मेदार लोग पहुँचते थे। आज तो इस पुंछ के अंदर पुंछ वालों ने हमेशा भल्ला साहब को अपना लीडर नहीं बल्कि अपने घर का एक फ़र्द भाई समझा है। तो भल्ला साहब आज इस दुख में भी यहाँ पहुँचे
तो हम इनके और कांग्रेस हाईकमांड के शुक्रगुजार हैं। बाकी इस एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे यहाँ कोई भी हादसा हो, पहले तो वो जो वादा है आपका चॉपर सर्विस जो बहाल की जाए, उसके अलावा यहाँ दवाई का, डॉक्टरों का जो है माकूल इंतजाम किया जाए। और जहाँ तक एक्स ग्रेशिया की बात है, जहाँ इन लोगों को आप लाख रुपया दे रहे हैं, तो इसी SRO में आप 43 SRO में जब हम कांग्रेस के दौर में इन लोगों को नौकरियां भी दी जाती थी, तो आज जिस घर में जो शहीद होता है उस घर के एक फर्द को नौकरी भी दी जानी चाहिए। और जो ये इंजर्ड लोगों के लिए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, भल्ला साहब ने भी कहा कि बड़ा बहुत ही हकीर सी रकम जो रखी हुई है, 10,000 या 5,000 हमारी कीमती जानों का की जो कीमत लगा रहे हैं, हमें दुख होता है इससे। एडमिनिस्ट्रेशन या तो हाथ पीछे कर ले, हम लोग खुद अपना चंदा करके भी उस आदमी को अपनी सपोर्ट से यहाँ के लोग सिविल सोसाइटी जो है जम्मू तक पहुँचाएगी, वहाँ भल्ला साहब जैसे शेर बैठे हुए हैं उनका इंतजाम करवाएंगे। तो इसलिए उनको भी कम से कम 50,000 से लाख रुपया जो है जम्मू जाने वालों को, यहाँ जो इंजर्ड हुए 50,000 रुपया देना चाहिए। इसके लिए भी हम मौजूदा सरकार से ये बात कहेंगे। तो मैं आखिर में इस गम की घड़ी में जो हमारे साथ जितने भी शरीक हुए और हमारी लीडरशिप जो सीनियर लीडर यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनका शुक्रगुजार हैं। गमगीन मोड़ यहाँ पे था और पिछले 2 रोज़ के बाद जो कीमती जानें यहाँ पे चली गई, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करने के लिए जम्मू से चल के यहाँ पे आए। हमारे सारे साथी, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, गनी साहब, हमारे BDC के चेयरमैन जो यहाँ के हैं, पंच सरपंच, सब लोगों के साथ इकट्ठी टीम के तौर पे लोगों की मुश्किलातों को सुनना और ये हमदर्दी का इज़हार करना। मैं समझता हूँ कई चीज़ें ग्राउंड रियलिटी क्या है ये चीज़ जानने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचे। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से इस मौजूदा सरकार के नाते पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार छेड़ी गई है, हम तो उसकी निंदा यहाँ पे करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा ठोस कदम यहाँ पे उठाए कि आए दिन जो सीज़ फायर वायलेशन की यहाँ पे हो रही है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन इन 4-5 सालों में यहाँ पे, और वे जो बॉर्डर एरिया पूरा पुंछला ज़िला इससे काफ़ी प्रभावित यहाँ पे हुआ। और जो इस ढंग से फायरिंग यहाँ पे और उसकी रेंज बढ़ाएगी, काफ़ी 10 किलोमीटर के अंदर आके बांडे चेचियाँ की जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि कीमती जाने यहाँ पे चले गए। इंटीरियर में आके भी यहाँ पे मोटर शेल यहाँ पे गिरे, और उसके साथ जो बॉर्डर पे यहाँ के रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो भी अब फसल नहीं काट पा रहे। और मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का मोल यहाँ पे ज़रूर है। हम सब लोग इन सारे साथियों के, और ये दलेर आदमी हैं, निडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जो बॉर्डर पे रह के भी इस वक्त अपने जिंदा दिली का सबूत यहाँ पे दे रहे हैं। और जो लोगों की जाने गई उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, और जो ज़ख्मी हैं ताकि वो जल्द से जल्द उनकी रिकवरी यहाँ पे हो, ठीक ठाक हो जाए। और यही कोशिश हमारी रहेगी कि केंद्र सरकार को ऐसा कदम यहाँ पे उठाए कि सीज़ फायर वायलेशन की उल्लंघना बंद यहाँ पे हो, और अपने दबाव के ज़रिए पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवा पाए, ताकि आए दिन यहाँ के रोज़ जो वारदातों से लोग यहाँ पे परेशान हैं और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलातें हैं उसका समाधान कहीं पे नहीं। उम्मीद करते हैं कि सरकार जो यहाँ के सत्ता के नशे में सोई हुई है, अंकारी में नशे में सोई हुई है, वो ऐसे कदम यहाँ पे उठाए। कम से कम यहाँ पे हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट एजेंसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हेलीकॉप्टर टाइमली अवेलेबल होता और इसके साथ साथ हॉस्पिटल की, चाहे PHC सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल में सुविधाएँ जहाँ पे हो, बॉर्डर बेल्ट यहाँ पे जिसमें आए दिन फायरिंग के माध्यम से लोग शिकार यहाँ पे होते हैं, प्रॉपर व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत है। पूरा बंदोबस्त, पूरी जितने भी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे हो, सेहत संबंधी हो, सर्जिकल आइटम हो, उनका होना ज़रूरी है। तो शायद अगर ये पूरा पर्याप्त यहाँ पे उनके पास पूरी चीज़ों का बंदोबस्त यहाँ पे होता, डॉक्टर वो अवेलेबल होते, तो इस नौजवान साथी की जान नहीं जाती, जो ज़्यादा खून बहने से जान चलेगी। और यहाँ पे जम्मू पहुँचते हुए 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र करने के बाद उसकी जान यहाँ पे गई। तो टाइमली एक्शन करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि रियासती सरकार, जो यहाँ के UT की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाती तौर पे दिलचस्पी यहाँ पे ले, ज़रूरत है कि वो बाहर निकल के इस ज़िले का दौरा लगा के खुद लोगों की मुश्किलातें यहाँ पे सुने कि किस हालात में यहाँ पे कहीं पे भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला भी दिखाई नहीं दे रहा। बेरोज़गार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। एक छोटे से बंकर बनाने से, बंकर भी सिर्फ हाफ हार्टेडली बनाए गए हैं, कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। और मैं समझता हूँ बंकर भी एक समाधान यहाँ पे नहीं है। या तो इनको सेफ़र प्लेसेस पे आए दिन जो लोग शिकार यहाँ पे होते हैं, सेफ़र प्लेसेस को आइडेंटिफाई करें, और ताकि इनको प्रॉपर वहाँ पे सुविधा यहाँ पे मिल पाए, ये लोग आए दिन शेलिंग का शिकार ना हो पाएँ। तो कई सारी ऐसी त्रुटियाँ यहाँ पे हैं जिसको
उजागर करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे एक प्रॉपर फोरम के माध्यम से लिखित रूप में भी एलजी गवर्नर साहब को भी ये चीज़ें देंगे ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करे और यहाँ पे सेहत संबंधी हॉस्पिटल में पीएचसी सेंटर जो भी बॉर्डर बेल्ट के साथ लगते हैं ताकि इमीडिएटली रिलीफ मिल पाए, उनको फर्स्ट एड तो प्रॉपर तौर पे मिल पाए, जिसकी यहाँ पे कमियाँ देखने को मिली। तो मैं यहाँ पे कोई रहनुमा के तौर पे नहीं, मैं तो इनका एक साथी, कंधे के साथ कंधा मिलाता हुआ एक सिपाही के तौर पे इनका सेवादार होने के नाते यहाँ पे पहुँचा और ज़रूर कोशिश करेंगे, जोरदार तरीके से इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनकी आवाज़ कहीं रुक ना पाए। ज़रूर केंद्र की सरकार जो सत्ता के नशे में इस वक्त सोई हुई है, तो उनको जगाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ जगाने के मकसद से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करें। पुंछ ज़िला जो बिल्कुल ही लास्ट एज पे यहाँ पे है, सीमावर्ती क्षेत्र में आए दिन फायरिंग का शिकार होने वाले लोग, यहाँ पे प्रॉपर तौर पे कहीं कंपेंसेशन नहीं। अगर ज़मींदार हैं तो अपनी फसलों के बारिशों के कारण नुकसान हुआ, कोई रेवेन्यू एजेंसीज उनका जायज़ा लेने के लिए नहीं आई, मुआवजा देने की बात कहीं नहीं करती। तो ये चीज़ें जो हैं, जो मैं समझता हूँ जो पिछली सरकारों ने एक प्रथा यहाँ पे चलाई थी, कहीं पे भी ज़रूरत हो इमीडिएटली रेवेन्यू एजेंसी जाए ताकि ये मेहनत करने वाले लोग हैं, अगर इनको प्रॉपर तौर पे मुआवजा नहीं मिलेगा, फसलें तबाह हो गई, अब फायरिंग के कारण ये अपनी फसलें काट नहीं सकते, मकई काट नहीं सकते, कहाँ पे जाएंगे? हर एक जगह पे मार्केटिंग का बंदोबस्त हो पाए, कहीं पे प्रोक्योरमेंट सेंटर करने की ज़रूरत है तो इमीडिएटली खोल पाए ताकि इनको मार्केट रेट कहीं ना कहीं मिल पाए। तो मैं समझता हूँ जमींदार हों या बाहर के सिविलियन लोग हों, जो इस प्रॉक्सी वार से क्रॉस बॉर्डर वायलेशन से काफ़ी परेशान यहाँ पे है, उनकी परेशानियों को हम अच्छे समझते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन परेशानियों का समाधान करते हुए केंद्र पे दबाव बना। समझता हूँ ये झूठ की पुलंदों की ये लोग केंद्र में भी सत्ता में आए और जम्मू कश्मीर में भी लोगों को गुमराह करते हुए सत्ता में आए। बॉर्डर के लोगों के हमदर्द करने की बातें बहुत करते थे। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर पीएमओ हाउस में बैठा हुआ भी यहाँ का एक रियासत इस यूटी का एक मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन बंकर की पोजीशन क्या है? हाल में डिवीजनल कमिश्नर साहब ने मीटिंग ली, 5000 बंकर है, सिर्फ बंकर ही उनका हाल नहीं, इनको सेफर प्लेसेस में यहाँ पे बॉर्डर में दूर दूर इलाके में मकान यहाँ पे है, तो बंकर होगा तो एक घर में के लिए होगा और कलेक्टिव भी अगर बनाया जाएगा तो लोग जिस वक्त ये शेलिंग यहाँ पे होती है तो इतनी दूर दूर से एक बंकर में पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है और मैं समझ देरी लगती है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही को जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उससे संबंधित लोग इमीडिएटली कोई कदम उठाएं और इनसे बैठ के बातचीत करके इनको बाढ़ को ऑन बोर्ड लेके ताकि इनका कॉन्फिडेंस हो पाए, इनका हौसले बुलंद रह पाए, ताकि हम सब लोग मिलके इस चुनौतियों के जो प्रॉक्सी वार से हम लोग जूझ रहे हैं इकट्ठा होकर मुकाबला करने के लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देने पड़े, हम लोग पीछे नहीं हैं। लेकिन केंद्र की सरकार में जो कहती है वो करके यहाँ पे दिखाए और मैं समझता हूँ उसका कहने में और करने में बड़ा अंतर है। जो यहाँ पे आके मौके पे बांडे चेची हो या इस यहाँ की पंचायत में हो, कनकोट जैसी पंचायत में देखने को मिला, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिन्होंने किसी ने अपनी बेटी खो दी, तो हम सब लोग उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी इनको दिक्कत ना आ पाए, हम पूरे तरीके से इनकी मांगों को यहाँ पे उजागर करेंगे ताकि रियासती सरकार, रियासती यूटी जो सरकार है उसका भी ध्यान इसकी तरफ